Hello students, in today's lecture number 6 on electromagnetic induction, we shall have discussion on the magnetic energy stored by an inductor. In previous lectures, we discussed the concept of EMF and induced current. We also discussed various methods to induce EMF or current in a coil or circuit, and we discussed Faraday's law of EMI and Lenz law. Then we had a discussion on the concept of inductance, self-inductance and mutual inductance. Now we start our discussion on magnetic energy stored by an inductor. You see, when an inductor of inductance capital L, when an inductor of inductance capital L is connected with a source and when key is closed, after connecting an inductor, suppose this is the inductor, all of you know that an inductor is also known as coil. An inductor is also known as a coil. This is the inductor of inductance. Self-inductance of this inductor is capital L, and this inductor is connected to a source. Suppose this is the source, we can say battery, and through a plug key it is connected. This is the negative terminal of the battery and positive terminal. As we close the key, as we close the plug key, immediately current will start to flow through the circuit. As we close the plug key, current will start to flow through the circuit, or we can say through this inductor. As this current increases from minimum to maximum value, initially it is very much clear that current will increase from 0 to maximum. It means minimum to maximum, and because of this change of value of current, EMF is induced in the inductor, and it is induced in this direction. This will be the direction of induced EMF. Because the current is increasing, so the flux linked with the coil or inductor will increase, and because of change in current, flux linked with the inductor will change, and this change in magnetic flux linked with the inductor induces EMF or current in the inductor itself, which opposes the existing current. This EMF opposes the existing current. This is the existing current which is flowing due to this battery, and this existing current is opposed by this induced EMF or current. Therefore, this EMF is also known as, all of you know, back EMF or opposing EMF, right? It is also known as back EMF or opposing EMF. Now we may write, what can be written? If L is the inductance of this coil, then the voltage drop across the inductor, suppose we have applied this much amount of voltage, V is the voltage which is applied with the help of this battery, right? So the voltage drop across this inductor, whose inductance is capital L, is written as L di upon dt with negative sign. This is the voltage drop across an inductor. ये आप ध्यान रखिए, किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस यदि आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो उस इंडक्टर का इंडक्टेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट ऑफ चेंज इन करंट से, L into di upon dt. This L into di upon dt will give you the voltage drop across the inductor, and this negative sign indicates that the EMF or current is induced in such a way that it opposes the original current, right? It opposes the original, or you can say existing current. So minus L di upon dt is back EMF, you can say, right? All of you know
as per the concept of self-inductance and mutual inductance also. In this case, the concept of self-inductance is applied. यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन हो रहा है क्योंकि एक ही कॉइल है, इसी कॉइल में हमने करंट फ्लो किया और इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का एग्जांपल हो गया एक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और वी may write, as we remove the sign of proportionality, then we have equal to L into I, where L is where L is the coefficient of self inductance, of coil, or simply you can say capital L is the self inductance of the coil. No need to write this coefficient again and again. It understood that it is the coefficient of self inductance, so you may write it self inductance of coil only. So phi V is equal to Li. Now you see what is inducing in this circuit. In this circuit, back EMF is induced. And the voltage which is applied with the help of this battery is equal to EMF, E, right? So again, using Faraday's law of electromagnetic induction, as per Faraday's law of electromagnetic induction, as per Faraday's law of electromagnetic induction, we may write induced EMF, which is nothing but the back EMF. This is back EMF, right? This back EMF is equal to the negative rate of change in magnetic flux. We know it very well as per Faraday's law. And or you may write E is equal to, what is value of phi V? Value of phi V is Li. So this can be rewritten as minus L can be taken out because the coefficient of self inductance is not changing in respect of time. So this will be minus L di upon dt. Clear? Now it is very clear that the source will have to do work. It is clear that source will have to do work against the back EMF, Back EMF is opposing, you see in this coil, what is inducing? Back EMF is induced. We have to do some work against this back EMF. Against this back EMF, we have to do some work, right? Against this back EMF, we have to do some work. And to do this work, you see, we are writing, it is clear that source will have to do work against the back EMF in sending the current through the coil. In sending the current through the coil. In sending the current through the coil. ये कॉइल से जो ये करंट है, इसको भेजने के लिए हमें इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। करंट थ्रू द कॉइल सेंड करने के लिए हमें इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैक ईएमएफ इसके फ्लो को अपोज कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। और यही जो वर्क है, जो कि इस बैक ईएमएफ को करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कॉइल,
इस करंट के कॉइल में फ्लो होने के अगेंस्ट जो बैक ईएमएफ के द्वारा वर्क किया जा रहा है, वही वर्क इस कॉइल के अंदर, इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और वो एनर्जी का फॉर्म मैग्नेटिक एनर्जी होगा। इट मीन्स इंडक्टर स्टोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। इंडक्टर क्या स्टोर करता है? मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है, और उसी मैग्नेटिक एनर्जी को हम डिराइव करना चाह रहे हैं, राइट। सो दिस वर्क डन against back EMF in sending current I through the coil for time dt is written as, क्या लिखा जाएगा? is written as, all of you know, आप सब जानते हैं, EMF E is equal to dW upon dQ लिखा जा सकता है। कैसे? आपने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पढ़ा था, और यही पोटेंशियल डिफरेंस तो EMF कहलाता है। और W की जगह हमने ले लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, और Q की जगह ले लिया हमने DQ। तो जो वर्क डन आएगा, क्योंकि हम टोटल वर्क डन तो निकाल नहीं सकते एक साथ, तो इसलिए हमें शॉर्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन DW, जो यहां से लिखेंगे EMF इंटू क्या आ जाएगा? DQ। सो EMF का मैग्नीट्यूड हम ले लेंगे इंटू DQ। नाउ सिंस ऑल ऑफ यू नो दैट करंट इज नथिंग बट DQ अपॉन DT, करंट इज नथिंग बट DQ अपॉन DT, so DQ would be I into DT simply. Therefore this DW would be equal to E into I into DT। DQ की जगह हमने वैल्यू रखा I into DT। अब EMF, बैक EMF का वैल्यू रखिए, मैग्नीट्यूड है, तो जो ये नेगेटिव साइन है ये प्लस हो जाएगा मैग्नीट्यूड लेने पर, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा? LDI अपॉन DT आ जाएगा इंटू I DT। अब DT से DT कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्रॉस नहीं करेंगे। DW इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? LIDI, I को हम पहले लिख लें, LIDI ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो टोटल वर्क डन नहीं है, ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है बैक EMF के अगेंस्ट करंट को फ्लो करने पर जो करना पड़ रहा है हमें। यदि हम टोटल वर्क डन निकालना चाहते हैं, देयरफॉर टोटल वर्क डन by source in sending current through the coil against बैक EMF के अगेंस्ट करंट को कॉइल के थ्रू भेजने के लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा? हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा DW का। सिमिलरली राइट साइड का भी हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करंट का वैल्यू 0 से मैक्सिमम हो रहा है, ये हम जान रहे हैं, ठीक है। तो जब करंट 0 है तो वर्क डन 0, और जब करंट मैक्सिमम है तो वर्क डन मैक्सिमम हो जाएगा W। अब DW का इंटीग्रेशन आप जानते हो, W हो जाएगा, और लिमिट 0 से W। यहाँ पर L को बाहर निकाला जा सकता है। IDI का इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, I स्क्वायर अपॉन 2 होगा IDI का इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से I। आप I लिखिए या I मैक्सिमम लिखिए, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है, एक ही बात है। चलिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो 0 आएगा, और अपर लिमिट रखने से ये आ जाएगा। और यही जो W है, दिस इज नथिंग बट द एनर्जी।
since this W is nothing but the energy, which energy, magnetic energy. यही वर्क डन जो कॉइल है उसमें मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, यानी यही वर्क डन मैग्नेटिक एनर्जी के बराबर है। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय कॉइल, या फिर आप कह सकते हैं कॉइल कह दो, या फिर क्या कहते हैं, इंडक्टर, कॉइल और इंडक्टर। देयरफॉर दिस UM मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर किसके बराबर आ जाएगा, हाफ LI² मैक्सिमम, ये आ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी फॉर ए कॉइल, और वी कैन से इंडक्टर। This magnetic energy depends on the self-inductance of the coil. It depends on square of the amount of original current flowing through the coil. As you increase the current flowing through the coil, definitely the energy stored by this inductor will increase. यदि इस करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो इस इंडक्टर के द्वारा, कॉइल के द्वारा जो स्टोर की गई एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड के बाद में। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला प्रश्न जो मैंने लिया है, दिस इज एग्जाम्पल 6.9 ऑफ NCERT। व्हाट इज देयर इन दिस एग्जाम्पल? यू सी टू concentric circle, coil, two concentric coils, one of small radius R1 and other of large radius R2, such that R1 is very less than R2, are placed coaxially with centers coinciding। मतलब यदि हम इसका डायग्राम बनाएं तो कैसे बनेगा? एक कॉइल है इस तरीके से, ये एक कॉइल है जिसकी रेडियस में मान लेता हूं ये सेंटर है इसका, और रेडियस इसका R1 मान लेता हूं। एक दूसरी कॉइल है जिसका सेंटर वही है जो फर्स्ट कॉइल का था, जो स्मॉल कॉइल थी उसका जो सेंटर था वही सेंटर इस कॉइल का है। तो ये दूसरी एक कॉइल है, ठीक है, ये एक दूसरी कॉइल है, क्लियर, ये एक दूसरी कॉइल है और इसका रेडियस मैं R2 मान लेता हूँ। ये R2 है और ये R1 है। ये अंदर वाली जो है ये कॉइल 1 है और ये बाहर वाली जो है ये कॉइल 2 है। दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं क्योंकि दोनों का सेंटर सेम है और दोनों का एक्सिस भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और ये तो क्लियर है कि R1 इज वेरी लेस देन R2, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा इनका, ये हमें पता करना है। इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। मैं मान लेता हूं कि जो कॉइल 2 है इससे जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए I2 फ्लो हो रहा है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल 2 इज I2, क्लियर। नाउ द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, let I2 be the current flowing through coil 2. Therefore magnetic field of coil 2 at सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होता है, V इज इक्वल टू μ0I/2R। ये फॉर्मूला होता है किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ लिखेंगे कॉइल 2 में फ्लो होने वाले करंट I2 के कारण इस कॉइल 2 के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा V2, ये क्या लिखा जाएगा, μ0 तो कांस्टेंट है, I की जगह I2 आ जाएगा और 2R की जगह R2 आ जाएगा, रेडियस ऑफ कॉइल 2, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब देखिए ये जो कॉइल है, कॉइल नंबर 2, इट इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद कॉइल नंबर 1, ठीक है, विद कॉइल नंबर 1। देखिए ये कॉइल 2 जो है कॉइल 1 के साथ कोएक्सियली रखी हुई है, ठीक है। तो एज कॉइल 2
is placed coaxially with coil 1. Therefore, magnetic field of coil 2 is completely linked with coil 1. जो coil 2 का मैग्नेटिक फील्ड है वो coil 1 से लिंक हो जाएगा. जितना मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा इस coil 1 की सरफेस पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा जितना coil 2 के सेंटर पर है. ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो जाएगा. ठीक है, देयरफॉर यदि ये हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्योंकि हमें फाइनली म्यूचुअल इंडक्टेंस पता करना है तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा. देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 1 विल बी, क्या हो जाएगा, कॉइल 1 के लिए बात हो रही है इसलिए phi 1, और आप जानते हैं क्या होता है phi 1 इज इक्वल टू क्या होता है V2 सेकेंड कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ कॉइल 1. यही होता है. यदि यहाँ 1 है यहाँ 2 आएगा. ठीक है, यहाँ 1 है, यदि कॉइल 1 का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड सेकंड का है. ठीक है, इन दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोफिशिएंट हमें निकालना है. तो कॉइल 2 से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण होगा, कॉइल 2 के मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा. यानी कॉइल 2 का मैग्नेटिक फील्ड कॉइल 1 से लिंक्ड है तो phi 1 इज इक्वल टू V2. 1 यहाँ ले रहे हैं तो 2, लेकिन एरिया किसका लेंगे, कॉइल 1 का लेंगे, क्योंकि इतने एरिया में चाहिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ये निकाल लिया हमने. ठीक है, इसको लिख लें phi 1 इज इक्वल टू V2 का मतलब μ0I2 अपॉन 2R2. और A1 देखिए एरिया जो होता है सर्कुलर लूप का वो पाई आर स्क्वायर होता है. तो A1 है तो पाई इंटू R1 स्क्वायर, ये आ जाएगा. ठीक है, और यहां से इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, लिख लीजिए μ0 अपॉन 2R2 पाई R1 स्क्वायर इंटू I2. ये आ गया. ये phi 1 की एक एक्सप्रेशन आ गया phi 1 का. ठीक है, एंड एज पर डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन देखें तो जो phi 1 होगा वो किसके बराबर होगा, M12 ये होगा. phi 1 किसके बराबर होगा, M12 इंटू I2 के बराबर होगा. ऐसा भी लिखा जा सकता है डेफिनेशन से. तो इसको यदि मैं 1 मानूं और इसको यदि मैं 2 मानूं, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या आ जाएगा, phi 1 की जगह M12 I2 लिखें, M12 I2 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2R2 पाई R1 स्क्वायर इंटू I2. अब देखिए I2 से I2 कैंसिल हुआ. फाइनली M12 का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया, μ0 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2. ये M12 यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया. और जितना M12 आया है, M12 किसके बराबर होगा, M21 के बराबर होगा. तो M21 भी यही होगा. तो ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने निकाल लिया इस अरेंजमेंट का. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको. phi 1 लिखेंगे तो V2 इंटू A1 आएगा. यदि phi 2 लिखते तो क्या आता, V1 इंटू A2 आता. ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा. कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा. चलिए एग्जाम्पल 6.10 आगे के तरफ बढ़ेंगे.
नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6.10, ए पार्ट है इसमें। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड में स्टोर होने वाली मैग्नेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालिए इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड लेंथ स्मॉल एल। किसी सोलेनॉइड में स्टोर होने वाली, सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड एक कॉइल है, एक इंडक्टर है। उस कॉइल और इंडक्टर जिसको हमने सोलेनॉइड कहा है, सोलेनॉइड को हम इंडक्टर भी कह सकते हैं ना, कॉइल भी कह सकते हैं। तो उस सोलेनॉइड के द्वारा स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड लेंथ। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड लेंथ, इस टर्म में हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। ए पार्ट, सिंस मैग्नेटिक एनर्जी stored by an inductor, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, कितना है? um इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर और आई मैक्सिमम स्क्वायर, ये निकाला था। लेकिन हमें ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड लेंथ चाहिए। तो देखिए सोलेनॉइड की बात हो रही है। फॉर सोलेनॉइड ये होता है आपका सोलेनॉइड, इस टाइप से ये सोलेनॉइड होता है। और सोलेनॉइड के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है μ0 n I, स्मॉल n इंटू आई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करें? आई को एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक एनर्जी बी की फॉर्म में चाहिए, ए की फॉर्म में चाहिए, एल की फॉर्म में चाहिए। तो हमें आई को एलिमिनेट करना पड़ेगा। आई को क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आई को एलिमिनेट करें, और आई को एलिमिनेट करके क्या लिखा जा सकता है? आई की वैल्यू यहां से आ जाएगी बी अपॉन μ0 स्मॉल एन, μ0 स्मॉल एन, ये आ जाएगी। ठीक है, और किसी सोलेनॉइड का, चलो पहले ये लिख लो, फॉर सोलेनॉइड V इज इक्वल टू μ0 n I, तो यहां से I आ जाएगा B अपॉन μ0 n। एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस भी हमने निकाला हुआ है सोलेनॉइड के लिए, μ0 n स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए, ये निकाला हुआ है। ठीक है, और यहां से एल की वैल्यू को, इसको और मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं। क्या लिखा जा सकता है इसको? भाई कैपिटल एन जो है, देखिए यहां पर जो ये स्मॉल एन है, ये कैपिटल एन अपॉन एल के बराबर है। तो कैपिटल एन का जो वैल्यू आएगा यहाँ से स्मॉल एन इंटू स्मॉल एल आ जाएगा। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, इसको क्या लिखा जाएगा? μ0 कैपिटल एन स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? स्मॉल एन स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन एल इंटू ए। यानी फाइनली कैपिटल एल का वैल्यू क्या आ गया? μ0 एन स्क्वायर ऊपर आया, ए, ये एल से एल कैंसिल हुआ और इंटू एल, ये फाइनल वैल्यू आया किसका? एल का, μ0 n स्क्वायर ए इंटू एल। समझ में आ गया कैसे आया इसका यूज करके? ठीक है, पहले इस फॉर्मूले का यूज किया हमने, ये सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए आई की वैल्यू आपके पास आ गई और कैपिटल एल की वैल्यू आ गई। आई और कैपिटल एल की वैल्यू यहां पर रख दें, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड लेंथ आपको मिल जाएगा। तो रखिए, रखें, तो देयरफॉर um कितना आ जाएगा? um 1/2, एल की जगह क्या निकाला आपने? एल निकाला आपने μ0 स्मॉल n स्क्वायर ए इंटू एल। आई क्या निकाला था? b अपॉन μ0 n, और आई का स्क्वायर होता है, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2 μ0 n स्क्वायर ए एल बी स्क्वायर अपॉन μ0 स्क्वायर n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हुआ, μ0 से ये μ0 कैंसिल हुआ, um, और यहाँ से um का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? um का जो वैल्यू यहाँ से आएगा
1/2 म्यू जीरो तो नीचे आ गया 2 और म्यू जीरो, और ऊपर आ गया आपका b² a इंटू एल। ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड आ गई इंडक्टर के द्वारा इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया एंड लेंथ। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी जो कह रहा है इस क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है देखिए। हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है उससे हम इसे कैसे कंपेयर करें। तो देखिए कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाली थी हमने। तो फॉर कैपेसिटर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया था, ध्यान हो तो UE स्मॉल u E फॉर इलेक्ट्रिकल, और ये आया था 1/2 एप्सिलॉन 0 E², ये आया था। ठीक है, 1/2 एप्सिलॉन 0 E² आया था। वैसे ही सिमिलरली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर इंडक्टर के लिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, UM स्मॉल um, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर अपॉन वॉल्यूम ये होगा। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ये हो जाएगा। अब मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड UM कितना निकाला हमने, UM जो निकाला वो हमने कितना निकाला, ये रहा 1/2 म्यू जीरो b² एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, ये निकाला UM, यही तो निकाला। और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब देखिए जरा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम जो आया वो v²/2 म्यू नॉट आ गया। तो आप देख सकते हैं UM जो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है वो v² पर डिपेंड कर रहा है। वैसे ही जो UE था, UE इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये E² पर डिपेंड कर रहा है। तो ये देखिए, ये 1/2 एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट हो गया, ऐसे ही यहाँ पर 1/2 म्यू 0 कांस्टेंट हो गया। तो देखिए क्या कंपैरिजन आ रहा है कि चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की बात करें चाहे मैग्नेटिक एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इनमें सिमिलरिटी आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.8। और ये 6.8 क्या कह रहा है, 6.8 क्या कह रहा है, करंट इन ए सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर। किसी सर्किट के अंदर करंट डिक्रीज हो रहा है, फॉल्स मतलब डिक्रीज हो रहा है, कहां से कहां, 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो रहा है। कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। इफ एन एवरेज EMF ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, जब ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो उस वजह से 200 वोल्ट का EMF इंड्यूस होता है। गिव एन एस्टिमेट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा सर्किट का, ये हमें कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट देना है इसका। ठीक है, अब देखिए जो करंट है, करंट में यदि हम देखें करंट की वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू I1 कितना है, 5 एम्पियर है, और I2 कितना है, 0 एम्पियर है। ठीक है, 0 है, I2 कितना है, 0 एम्पियर है। तो 5 से 0 हो रहा है, कितने समय में हो रहा है, टाइम भी दे रखा है, 0.1 सेकेंड में हो रहा है। और इस वजह से जब करंट में चेंज 5 से 0 हो रहा है, करंट में चेंज आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और उस वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो कितना इंड्यूस हो रहा है, 200 वोल्ट। तो कह रहा है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो देखिए इसे हम सीधे से कर सकते हैं, जो EMF इंड्यूस होता है वो इतने के बराबर होता है। ठीक है,
इतना वोल्टेज ड्रॉप होता है, वही ईएमएफ होता है इंडक्टर के लिए। देखिए ये इंडक्टर है, यदि इस इंडक्टर में ईएमएफ का वैल्यू देखें तो ये फॉर्मूला एक हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। इसमें -L/di/dt, अब आपको याद होना चाहिए कि ईएमएफ इसके बराबर होता है इंडक्टर के लिए। और नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये ओरिजिनल करंट को अपोज करता है। यहाँ पर जो यदि डिक्रीज हो रहा है, देखिए करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि करंट डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से हमें L चाहिए, तो L चाहिए तो क्या आ जाएगा, -E/di/dt आ जाएगा। अब इसको और थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखें, -E, L ठीक है, -E और 1 में di का मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, I2 - I1 लिख सकता हूं di को, और dt की जगह मैं t लिख सकता हूं। dt की जगह क्या लिख सकता हूं, t लिख सकता हूं। di की जगह I2 - I1 लिखा और dt की जगह t लिखा। अब यहाँ पर वैल्यूज रखो, e का वैल्यू कितना है, 200 है, e का वैल्यू 200 है, ठीक है। और 1 में I2 कितना है, I2 है आपका 0 और I1 कितना है 5 और अपॉन टाइम कितना है, टाइम है आपका 0.1 सेकेंड। इसको सॉल्व करें तो L -200, 0.1 ऊपर जाएगा 0.1 और नीचे आ जाएगा -5। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, ये पॉइंट हटाओगे 0.1 को 1 लिखोगे तो नीचे 50 आ जाएगा, 50 से ये 4 आ जाएगा, तो L का जो वैल्यू आया 4 हेनरी आ गया। कितना आ गया, 4 हेनरी आ गया, यानी जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो 4 हेनरी हो जाएगा। चलिए एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन नंबर 6.9 है एनसीईआरटी का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। एक एडजेसेंट कॉइल का पेयर है, यानी पास पास रखी हुई, एडजेसेंट का मतलब पास पास रखी हुई कॉइल का एक पेयर है और उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 1.5 हेनरी है, 1.5 हेनरी है। If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? तो दूसरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कितना होगा, ये पता करना है। देखिए क्या कह रहा है, एक पेयर ऑफ कॉइल है, मान लीजिए ये एक पेयर ऑफ कॉइल है, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, पास पास रखी हुई है, ठीक है। और कह रहा है कि इनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है m, वो कितना है, 1.5 हेनरी है, 1.5 हेनरी इनका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है। यदि फर्स्ट कॉइल में मान लीजिए करंट I का वैल्यू 0 to 20 एम्पियर चेंज होता है, यानी I1 तो 0 है और I2 कितना है, 20 एम्पियर है, ये क्लियर है। I1 का वैल्यू 0 है और I2 20 एम्पियर है, और कितने समय में चेंज हो रहा है, ये 0.5 सेकेंड में चेंज हो रहा है। अब करंट इंक्रीज हो रहा है तो EMF जो इंड्यूस होगा इस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा EMF सेकेंड कॉइल में। अब इस सेकेंड कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमें निकालना है, यानी φ2 क्या होगा ये मुझे पता करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंस EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, -L/di/dt, जो अभी लिखा था हमने फॉर्मूला, ठीक है, यही होता है। अब E को हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू हम ऐसा भी लिखते हैं dφ/dt, ऐसा भी लिखते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन से मैं dφ/dt जो नेगेटिव है इसको बराबर लिख सकता हूँ L/di/dt विद नेगेटिव साइन। अब दोनों नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, dt से dt कैंसिल हो रहा है, तो जो dφ आया वो L/di आया, dφ की वैल्यू क्या आ गई, L/di आई। अब ये जो, यदि ये I1 है, मान लीजिए यदि ये फर्स्ट कॉइल का है,
ये जो करंट में चेंज हो रहा है ये फर्स्ट कॉइल में चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स किसका होगा? सेकेंड कॉइल का होगा। यदि मैं इसको सेकेंड कॉइल का ले लेता हूं तो जो ये चेंज होगा करंट में वो फर्स्ट कॉइल होगा, ये आप जानते हो। तो डी फाई टू जो होगा, डी फाई ऑफ सेकेंड कॉइल, ये एल का मतलब 1.5, और करंट कितना चेंज हो रहा है? करंट में जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 0 से 20, तो क्या आ जाएगा? 0 से 20। यहाँ पर जो करंट में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? इनिशियल करंट 0 है और फाइनल करंट 20 है, तो जो करंट में चेंज आएगा I2 माइनस I1, I2 कितना है? 20, और I1 कितना है? 0। ये DI का वैल्यू हो जाएगा, और यहाँ से D5 और फॉर सेकेंड कॉइल कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 20, और इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 10 से ये कैंसिल होगा 2, और 15 इंटू 2 यानी 30 वेवर, 30 वेवर ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा लिंक्ड विद कॉइल नंबर 2, लिंक्ड विद कॉइल नंबर 2। इस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है। तो आज हमने ये कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आज ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इसमें एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन नंबर 6.6 छोड़ा है, क्योंकि वो एक जनरेटर है, एसी जनरेटर, उसके ऊपर बेस्ड है, और वो उसका थ्योरेटिकल डिस्कशन एसी जनरेटर का वो भी छोड़ा है, क्योंकि प्रेजेंट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये इस साल के सिलेबस में एसी जनरेटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। सो थैंक यू वेरी मच।